Day 32, Kisan Kranti is peaking. The Prime Minister stepping in with a mega outreach. After rolling out 18,000 crore SOPs, the Prime Minister today flagged off the 100th Kisan Rail. किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। Farmers have set their demands, want a complete repeal of all 3 farm laws. तो अंतिम कोर्ट माना है अगर संभव हो सके। 7th round of talks on the 30th of December. Will the deadlock continue, or can we expect a breakthrough? Top focus on To The Point. Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. So which one will it be? Will the deadlock continue, or can we see a possible breakthrough? Viewers, it's day 32. The farmers still now have rejected every outreach made by the government. Even today, they're very clear. They've set their demand, number 1, and that is that all 3 farm laws be repealed. That's what they're going to be talking about on the 30th of December when they meet the government for the 7th time. 6 rounds of talks have failed. Can there be a breakthrough now? Will the government blink at all? Or will the farmers relent because they are saying nothing doing? "32 days of an agitation and no breakthrough." The Prime Minister stepping in. After speaking to farmers from 6 states to rolling out SOPs for 18,000 crores, with the cabinet clearing 3,500 crore assistance to sugarcane farmers and trying to assuage farmer fears in Mann Ki Baat. Today, the Prime Minister flagged off the 100th Kisan Rail from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal, hoping to strike a chord with farmers of small land holdings apprehensive of the new law. किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। सबसे बड़ी बात ये कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। The virtual launch comes at a time when a groundswell of farmers is standing on Delhi's borders for 32 straight days, wanting a complete repeal of the 3 farm laws. After 6 failed rounds, the 7th round of talks between the centre and the farmers will be held on the 30th of December. The decision comes after Home Minister Amit Shah met Piyush Goyal to discuss the farmers' proposal for talks. Farmer unions had written to the centre on Saturday, agreeing to hold talks with the centre on their 4-point agenda, making it clear that their number 1 demand is taking back all 3 farm laws and making sure that the MSP, minimum support price, is hardwired into the new law. If demands are not met, the farmers have already prepared a backup plan to escalate the agitation. The farmers will continue halting toll collection in plazas of Punjab and Haryana, boycott all corporate products, and to hold farmer rallies as a show of strength in Bihar and Tamil Nadu. Also, a clarion call for a nationwide protest by citizens of the country. Till now, the outreach by the Prime Minister and the government has been rejected by the protesting farmers. With talks now scheduled again, will government finally relent to farmer demands? Bureau Report, India Today. All right, so just let's take you through
where the government stands right now, because the government says that we've rolled out a massive outreach program to try and assuage farmer fears. Have they been able to assuage farmer fears? Well, not till now, because the farmers are very clear that they are not going to relent. So the government till now, well, the Prime Minister on the 25th of December interacted with farmers of 6 states. He spoke to them. Then rolled out, while he was speaking to farmers, 18,000 crore of a transferred benefit scheme which was going to take care of 9 crore farmers. December 18th, the Prime Minister addressed the Madhya Pradesh Farmers Kisan Unions. December 16th, the Cabinet okayed 3,500 crores for sugarcane farmers. Then, the Prime Minister on December 15th had reached out to farmers in Gujarat's Kutch. If you remember, he had gone, spoken to farmers there. And December 29th, Prime Minister assures farmers in his Mann Ki Baat, which was all of yesterday, and today he flags off the 100th Kisan Rail. Well, let's cut across to our guest this evening. I'm joined right now, in just a short while, we'll be joined by Sanju Verma, spokesperson Bharatiya Janata Party. I have Chaudhary Pushpendra Singh, President Kisan Shakti Sangh. Ashok Balyan, farm leader, would be joining us. So will be Vijay Javandia, founder member, Shetkari Sangathan. I want to cut across right now to Mr. Pushpendra Singh. Mr. Pushpendra Singh, पुष्पेंद्र सिंह जी, आपको अभी प्रधानमंत्री ने आज फिर एक किसान रेल चालू की है। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें इशू था कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो रह जाएंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी इन 3 लॉ के लिए। अब किसान रेल किया, 18,000 करोड़ जो बेनिफिट स्कीम है, कैश बेनिफिट स्कीम है, 9 करोड़ फार्मर्स के लिए दी, 3,500 करोड़ जो शुगर केन फार्मर्स है वो क्लियर किया गया। कल मन की बात में डायरेक्टली फार्मर से बात की गई। अब क्या चाह रहे हैं? देखिए, किसानों ने अपनी मांग जो रखी है, क्या मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है, बोलिए। जी, किसानों ने अपनी मूल मांग ये रखी थी कि निजी क्षेत्र में भी जो है एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए। उस मांग को नहीं माना गया है, वही मूल मांग है। ज्यादातर नुकसान जो किसानों का होता रहा है वो इसी कारण से होता रहा है आज तक कि जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता रहा है और एमएसपी से नीचे फसलों को खरीदता रहा है। तो इस वजह से ही हमने ये बात कही थी कि भाई जब निजी क्षेत्र है वो एमएसपी आपने अलाउ किया है कि भाई मंडी से बाहर भी बेचने की सुविधा आप दे रहे हैं, तो आप कम से कम ऐसा करिए कि मंडी के बाहर भी हमें एमएसपी का प्रावधान कर दीजिए। तो वो पैसा तो निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट सेक्टर को देना है, उसमें इनको क्या आपत्ति है, उसको सरकार नहीं मान रही है। बाकी जो स्कीम्स है, जो किसान के हित की स्कीम्स है, उनका तो हमने स्वागत ही किया है, चाहे पीएम किसान योजना हो या अन्य योजनाएं हैं। लेकिन पीएम किसान योजना में जैसे 6,000 रुपए का प्रावधान किया, हमने कहा भाई इसको 24,000 रुपए करिए। दूध के रेट भी हम कह रहे हैं कि भैया जो अमूल के रेट है उस तरीके के रेट लगाइए, क्योंकि दूध की इकोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री 1/3 इकोनॉमी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जी चौधरी साहब, मैं अभी आऊंगी आपके पास, क्योंकि आपने तो बोल दिया है कि सब चीज का वेलकम है पर एमएसपी नहीं कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि उस पर भी एश्योरेंस दी है। पर लेट्स कट अक्रॉस टू संजू वर्मा। Ms. Verma, if possible, let's speak in Hindi. We have a lot of farm union leaders there who would possibly prefer speaking in the language. संजू वर्मा जी, अभी जो फार्मर्स की 4 डिमांड है, जो वही डिमांड लेके वो 30 दिसंबर को जाएंगे गवर्नमेंट के पास, जो 7 राउंड टॉक्स होंगे तभी होंगे। नंबर 1 उनकी डिमांड अभी भी संजू वर्मा जी वही है कि आप तीनों लॉ हटाएं। तो क्या बात हो पाएगी? क्या गवर्नमेंट रेडी है ये डिस्कस करने के लिए कि तीनों लॉज हटाएं? प्रीति जी, मैं पहले तो जो आपके चैनल पर किसान भाई हैं, पुष्पेंद्र जी, उन सबको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और हम सिर्फ भाषण नहीं देते, हमने ये करके दिखाया है। जैसे आपने कहा अपनी इंट्रोडक्शन में, चाहे पिछले 2 साल में आप देखिए पीएम किसान के तहत 1,10,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली किसानों के बैंक खातों में डाला गया था। चाहे आप बात करिए 50,000 करोड़ की इंश्योरेंस कवच मिली है 6 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को। चाहे हम एमएसपी की बात करें, मैं एक चीज कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी को, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी मैंने दिसंबर 2018 की इंटरव्यू पढ़ी आपके कार्यक्रम में आने से पहले, जो उनकी पिंड ट्वीट है। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज तक भारत में 1965 से एमएसपी लागू है। किसी सरकार ने लिखित में एमएसपी प्रावधान करने का आश्वासन नहीं दिया, पर मोदी सरकार ने यह कहा है
कि हम मौखिक तौर पर ही नहीं बल्कि लिखित तौर पर भी एमएसपी पर आपको जो भी आश्वासन चाहिए देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए किसान भाइयों को भी बड़े दिल से नेगोशिएशन टेबल पर सामने आना चाहिए। नेगोशिएशन तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं, 2 कदम आप आगे बढ़िए, सरकार तो 6 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पर यह कहना, अपनी बात पर डटे रहना कि इन बिलों को निरस्त कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, इससे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देश में 300 से ज्यादा किसान यूनियन है और 250 से ज्यादा किसान यूनियनों ने नरेंद्र सिंह तोमर को यह कहा है कि भाई हम भारत की मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कृषि कानून हमारी भलाई के लिए हैं, आप इन्हें रिपील मत करिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूर हल निकलेगा, पर हल निकालने के लिए जो थोड़ा हट कम करना पड़ेगा। जी चलिए, संजू वर्मा जी, एक जो किसान बोल रहे थे पहले, मैं विजय जवंदिया जी को भी लाना चाहूंगी, पर किसान ने तो यही बोला है ना कि पहले एमएसपी लीगल नहीं था, लॉ नहीं था कभी भी, पर पहले फ्री मार्केट का भी लॉ नहीं था, तो अगर आप ये लॉ लेके आ रहे हैं तो ये भी करिएगा। पर विजय जवंदिया जी, जो संजू वर्मा कह रही है, अभी जो लिस्ट आई है इन संगठनों से कि साफ है नंबर 1 पे जो इनकी डिमांड है, जो 30 दिसंबर को लेके जाएंगे, कह रहे हैं कि लॉज वापस लीजिए। अगर आप इस पे अड़े हुए हैं तो फिर बातचीत कैसे होगी, आगे कैसे निकलेंगे, हल कैसे निकलेगा? प्रीति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल संजू जी को पूछा कि इसके पहले के नहीं किया था और आपने 3 लॉ लाए हैं। बार बार प्रधानमंत्री साहब और सब भाजपा के नेता कहते हैं कि एपीएमसी के बाहर अच्छे दाम मिलने वाले हैं, कांग्रेस के जमाने में होने वाला 70 साल का शोषण बंद होने वाला है। तो जब अच्छे दाम मिलने वाले हैं, मतलब एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने वाले हैं, तो फिर एमएसपी को लीगलाइज करने में डर क्यों है? कांग्रेस ने गलती की ना, और आप तो एमएसपी लीगलाइज कर दिए जी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमएसपी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द ट्रेडर। और संजू जी से मैं एक बात कहता हूँ, कल मुझे ये पूरी बात कहने दीजिए, मुझे संजू जी को ये बात बतानी है कि कल प्रधानमंत्री साहब मध्य प्रदेश के किसान से बात कर रहे थे, उसको पूछ रहे थे कि 3 कानूनों का आपको क्या फायदा हुआ। वो किसान कहता है कि मैंने एपीएमसी के बाहर आईटीसी के ई चौपाल में सोयाबीन बेचा 4100 रुपए में। मैं संजू जी को पूछता हूँ, क्या आईटीसी का ई चौपाल आज शुरू हुआ है? वो तो मनमोहन सिंह जी के राज्य के समय ही शुरू हो गया था और उसने कई साल खरीदी की और बीच में भाग गया था वो मंदी के कारण। अब इस साल आया है, पिछले साल क्यों नहीं खरीदी किया? जब ये 3 कानून नहीं थे तो भी आईटीसी ई चौपाल शुरू कर सकता था। तो क्या कितना मूर्ख बनाएंगे आप किसानों को? मैडम, I'll come to you. No, let him have his say. You had your say uninterrupted. विजय जी, अभी आपने बहुत कुछ कहा। विजय जी, आपने बहुत कुछ कहा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने सिर्फ धान और गेहूं में पिछले 6.5 सालों में किसानों को एमएसपी के तहत 8 लाख करोड़ का भुगतान किया है। कांग्रेस के जमाने में दाल में सिर्फ एमएसपी का भुगतान हुआ था। जवंदिया जी, इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मोदी सरकार के तहत मोदी सरकार के तहत दाल में एमएसपी का भुगतान कितना किया मोदी सरकार ने? 50,000 करोड़। कांग्रेस के तहत कितना था? सिर्फ 650 करोड़। मैं आपको और एक चीज बता दूं विजय जी, सिर्फ 4 दिन पहले 441 लाख मेट्रिक टन धान की सार्वजनिक खरीदारी हुई। आपको पता है 82,000 करोड़ देकर सरकार ने एमएसपी पर 441 लाख मेट्रिक टन की धान की खरीदारी की है। तो आप ये जो कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं आपका विनम्रता पूर्वक इस बात का पूरी तरह से खंडन करती हूं। मुझे बताइए, क्या किसानों को आयुष्मान भारत से फायदा नहीं होता? क्या किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फायदा नहीं हुआ? क्या किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से फायदा नहीं हुआ? प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर कृषि भाई को महीने का 3,000 रुपए मिलेगा। क्या इससे आपको फायदा नहीं होगा? और जहां बात प्राइवेटाइजेशन की है, तो मैं ये कहना चाहती हूं, सरकार ने क्लियर किया है कि ना तो कृषि भाई को, किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, ना तो इसको गिरवी रखनी पड़ेगी। मान लो कल किसान के बीच में और जो प्राइवेट एंटिटी है कुछ मतभेद हुआ, तो कृषि भाई सिविल कोर्ट जा सकते हैं,
सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के तहत जो कंसिलिएटरी बोर्ड है वहां पर अपनी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये कहना कि मोदी सरकार ने आप लोगों का ख्याल बिना रखे ये कानून लाए हैं, ये सरासर गलत है। मैं अशोक बालियान जी को भी लाना चाहूंगी, पर जवंदिया जी आपको आंसर करना था। चलिए, ऑलराइट मिस वर्मा, यू हैड योर से। I'd like to also go to अशोक बालियान जी, पर पहले आप जवंदिया जी आप आंसर करना चाह रहे थे, बोलिए। जो संजू वर्मा ने बोला है, उन्होंने आपको साफ पॉइंटर्स दिए हैं। बिल्कुल, देखिए संजू वर्मा जी जो कह रही है ना कि हमने इतना खरीदा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां गए आपके वो व्यापारी जो 8.5% मंडी टैक्स को बचाकर पंजाब और हरियाणा में धान खरीदने के लिए नहीं आए? क्यों नहीं आए वो खरीदने के लिए? वो खरीदते तो इनको कम खरीदना पड़ता था। 8% मंडी टैक्स के बारे में अशोक बालियान जी, बात ये है कि बंदूक की नोक पे तो समझौता नहीं हो सकता है ना बालियान साहब। अगर अब हम 30 को दिसंबर को आप मीट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, आपकी पहली डिमांड यही है कि आप तीनों कानून वापस लीजिए, एमएसपी को लीगल करिए। अब यही बातें दो हैं जो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो क्या बात होगी? देखिए, मेरा ये कहना है कि कभी भी दुनिया के किसी भी देश में वार्ता शर्तों पर नहीं हो सकती कि आप कानूनों को खत्म करिए फिर हम वार्ता की टेबल पर बैठेंगे। मैं बहुत लंबे समय से किसान राजनीति में रहा हूँ। जावंदिया जी, हम साथ साथ किसानों के मूवमेंट में विदेशों में भी गए हैं और भारत में भी हमने और जावंदिया जी ने अनेकों बार आंदोलन किया चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के साथ में मिलकर। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना वैसे किसान भाइयों की प्रॉब्लम नहीं है, किसान नेताओं में से खासकर मैं पंजाब के किसान नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो इस जिद को छोड़ें कि पूरे इन कानूनों को आप खत्म करिए। ये कानून पढ़े लिखे देश के जो किसानों के बेटे हैं, हम जैसे सोच के लोग हैं, उनके कहने पर भारत सरकार ने कृषि और किसान के हित में ये तीनों कानूनों को बनाया है। एक बात मैं पूर्व वक्ता की बात को मैं यहाँ कोई बीजेपी को सपोर्ट करने नहीं बैठा हुआ, मैं किसान राजनीति से आया हूँ। मैंने डाटा निकाल कर देखे 2005 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कृषि उपज के दाम कितने बढ़े और 2014 से लेकर 2019 तक कितने बढ़े। ये अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ बैठकर टीवी पर, हम तथ्यों की बात करेंगे तो इस सरकार में ज्यादा दाम बढ़े, इस सरकार में हमारी खरीद ज्यादा हुई। हाँ, मैं मानता हूं कि धान के मामले में, लेकिन मेरे किसान नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारी विपणन व्यवस्था की कमियां है। उन कमियों को नियम से सुधारा जाएगा, न के कानून से। तो अभी बालियान साहब आप कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल करने की जरूरत नहीं है, उनको अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आप बताऊंगा। देखो, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया था, क्योंकि 2017 में चीनी का मूल्य 22 रुपए प्रति किलो हो गया था। तो उससे क्या हुआ था कि किसानों का देश में 36,000 करोड़ के लगभग गन्ना भुगतान रुक गया था। तो ये तो सच बात है कि किसान की फसल न्यूनतम समर्थन, सारे नहीं कहता मैं, किसान की अधिकतर फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है फसल आने के वक्त में। चलिए, आप कह रहे हैं सिर्फ पंजाब, आप कह रहे हैं सिर्फ पंजाब फार्मर्स की प्रॉब्लम है, पंजाब किसानों की प्रॉब्लम है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी है हमारे साथ। के बारे में बात की, मैंने चौधरी पुष्पेंद्र साहब जी आपने बारे में कहा है। जी चलिए, चौधरी पुष्पेंद्र साहब, जैसे बालियान जी कह रहे हैं कि अभी जिद छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? फिर नहीं, बालियान साहब हमारे भाई हैं और खेती किसानी के मुद्दों को बहुत बारीकी से समझते हैं। जो मांग उठाई जा रही है वो ये है कि कृषि सुधारों की आवश्यकता थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार मंडी से बाहर बेचने की सुविधा आपने दी है कि भाई एपीएमसी एक्ट के बाहर भी आप बेच सकते हैं, बाहर मंडी के एपीएमसी में जैसे एमएसपी की व्यवस्था है वही व्यवस्था बाहर भी कर दीजिए। ये मूल मांग है, इसके विषय में कोई चर्चा सरकार ने नहीं की है। उनका कहना है कि एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था चालू रहेगी, उसको हमने मान लिया, उसका धन्यवाद भी आपको दे दिया। एग्जिस्टिंग परचेज आप जो करते हैं वो आप करते रहेंगे, लेकिन बाहर जो प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा उसके विषय में कोई एश्योरेंस सरकार की तरफ से नहीं मिला है। संजू वर्मा, MSP to be hardwired into law outside. Anyone who buys at an MSP. राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगी, यहां पर पुष्पेंद्र जी हो, विजय जी या बालियान जी हो, इनको कृषि कानूनों की बहुत समझ है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आपने ये कहा कि मंडी में बेचा जाएगा तब तो सार्वजनिक खरीदारी एमएसपी पर होगी, पर यदि एमएसपी
यदि मंडी के बाहर ट्रेडिंग एरिया में खरीदारी होगी तो एमएसपी लागू नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है। सरकार ने ये नहीं कहा है कि यदि ट्रेडिंग एरिया में किसान अपना उत्पादन बेचने जाता है और उसे सही दाम नहीं मिलता तो सरकार इंटरवेंशन नहीं करेगी और फिर एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेगी। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि एमएसपी सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही लागू होगी? क्या सरकार ने कहा है कि नए ट्रेडिंग एरिया में एमएसपी लागू नहीं होगी? एक बार भी सरकार ने ऐसा नहीं कहा। बार बार नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह तोमर, चाहे वो अमित शाह हो, पीयूष गोयल हो, उन्होंने यही कहा है कि एमएसपी हटाने की बात ही नहीं हुई। एमएसपी हटाने की बात ही नहीं हुई। कहां बोला है कि नहीं होगी एमएसपी बाहर? हाँ, वो बात हम आपकी समझ गए कि मंडी के अंदर एमएसपी की व्यवस्था है, मंडी के बाहर एमएसपी नहीं मिलेगी। वो तो खुला रेट होगा, जो रेट एमएसपी से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और जनरली एमएसपी से नीचे ही खरीदने का काम है। तो उसमें एक एश्योरेंस दे दीजिए कि भाई उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, फ्लोर प्राइस है, उसको देने में कोई आपत्ति नहीं। और सरकार की जेब से इसमें कुछ नहीं जाना है, ये प्राइवेट व्यापारी को देनी है। जो आप देने के लिए तैयार है, सरकार लिखित में एश्योरेंस देने के लिए तैयार है, पर किसान पर किसान भाई तो कह रहे हैं जी विजय कि बिल को रिपील कीजिए। विजय जवांदिया जी, अगर बिल रिपील ना हो, मैं क्लियर कर दूं हमारी बहन संजू जी, देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं छोटा सा। सरकार एश्योरेंस ये दे रही है कि हम जो खरीदते हैं, यानी सरकार जो खरीदती है वो एमएसपी पर चालू रहेगी। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट वाला भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये एश्योरेंस नहीं दिया है, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। यही तो मूल मांग है, इसको नहीं माना गया। एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, नहीं मेरे को एक बात बताइए। अभी किसान के पास विकल्प है, चाहे तो वो एपीएमसी मंडी में बेच सकता है, चाहे तो वो ट्रेडिंग एरिया में बेच सकता है। यदि उसको एपीएमसी मंडी में एमएसपी पर अच्छा दाम मिल रहा है तो वो ट्रेडिंग एरिया में नहीं बेचेगा। यदि ट्रेडिंग एरिया में एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो एपीएमसी मंडी में नहीं बेचेगा। Verma, you just said in trading areas there is so that is what I'm saying, freedom of choice. No, but you just said, but madam, one second, you know, because we have farm union leaders there, you just said, you said, madam, one second, madam, you said in trading areas there will be MSP, you just said it, which has not been discussed, which is something that the farmers have been asking for. Yes, so that is what so Preeti, can I please, Preeti, that is what I'm saying, that the government has not said that the MSP will not be applicable to trading areas. But maybe the farmer may get a far better price. If he gets a better price than MSP, then obviously government will not come in and buy at MSP. जवंदिया जी 10 सेकंड फिर मैं शो रैप अप करती हूँ, बोलिए जवंदिया जी। हाँ, नहीं, संजू जी जो बोल रही है ना कि ट्रेडिंग एरिया के बाहर नहीं मिलेगा तो एपीएमसी में एमएसपी रहेगी, तो इतना ही लिख कर दे दीजिए कि एपीएमसी के बाहर अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगा तो एपीएमसी में सरकार एमएसपी में सब खरीदी करेगी, इतना लिख दीजिए ना। उसको कानून बनाने में क्या दिक्कत है आपको? मुझे समझ में नहीं आता। Okay, I need to close this podcast. Gentlemen and Ms. Verma, appreciate you all for joining us. We're going to keep a keen eye on all developments. It doesn't seem that there is going to be any middle path, but let's just wait till the 30th of December because that would be the 7th round of talks. Thank you for joining us. Up next is Rahul Kanwar. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.